Just as God Just as God is eternal, we are also eternal. And when we establish our eternal relationship with the Supreme, complete eternal, we realize our eternality. Nityo Nityanam Chetananam. God is the supreme living entity among all living entities, the supreme eternal among all eternals. By Krishna consciousness, by purification of the senses, this knowledge will be realized and we will come to see God. A Krishna conscious person has realized knowledge by the grace of Krishna because he is satisfied with pure devotional service. By realized knowledge, one becomes perfect. By transcendental knowledge, one can remain steady in his convictions, but by mere academic knowledge, one can be easily deluded and confused by apparent contradictions. It is the realized soul who is actually self controlled because he is surrendered to Krishna. He is transcendental because he has nothing to do with mundane scholarship. For him, mundane scholarship and mental speculation, which may be as good as gold to others, are no greater value than pebbles or stones. Even if one is illiterate, he can realize God simply by engaging himself in submissive, transcendental, loving service. God is not subjected to any material condition. He is Supreme Spirit, and the process of realizing Him is also beyond material considerations. Therefore, one may be a very learned scholar and still not be able to understand God. One should not think that because he is very poor he cannot realize God, nor should one think that he can realize God just because he is very rich. God may be understood by an uneducated person and misunderstood by one with great education. The understanding of God, like God Himself, is unconditional. Apratihata. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktira dokshaje ahaitukya pratihata yayatma suprasidati. The supreme occupation, dharma, for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. Cultivation of love of God, that is the definition of first class religion. Just as there are three gunas or three qualities in the material world, there are various religions, each situated in one of the three modes. We are not, however, concerned with analyzing these religious conceptions. For us, the purpose of religion is to understand God and learn how to love God. That is the real purpose of any first class religious system. If a religion does not teach love of God, it is useless. One may follow his religious principles very carefully, but if one does not possess love of God, his religion is null and void. According to Srimad Bhagavatam 1.2.6, real religion must be ahaituki and apratihata, without selfish motivation and impediment. By practicing such a religion, we will become happy in all respects. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktira dokshaja. Another name of God is adokshaja, which means one who cannot be seen by materialistic attempts. That is to say that God conquers all our attempts to see Him materially. The word akshaja refers to experimental knowledge, and ada means unreachable. So God cannot be reached through experimental knowledge. We have to learn to contact Him in a different way, through submissive hearing and the rendering of transcendental loving service. True religion teaches causeless love of God. It does not say, I love God because He supplies me nice things for my sense gratification. That is not love. God is great, God is our eternal Father, and it is our duty to love Him. There is no question of barter or exchange. We should not think, "Oh God, give me my daily bread, therefore I love God." Um, God gives daily bread even to cats and dogs, since He is the Father of everyone. He is supplying everyone food. So loving God for daily bread is not love. Love is without reason. Even if God does not supply us our daily bread, we should love Him. That is true love. As Chaitanya Mahaprabhu said, Ashlishava padaratam pirastu mam adarshanam marmahatam karotu va.
I know no one but Krishna as my Lord, and he shall remain so even if he handles me roughly by his embrace, or makes me broken-hearted by not being present before me. He is completely free to do anything and everything, for he is always my worshipful Lord unconditionally. That is the sentiment of one who is established in pure love of God. When we attain when that stage of love of God, we will find that everything is full of pleasure. God is full of pleasure, and we also are full of pleasure. सुहृन्मित्रारि उदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. A person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral mediators, the envious friends and enemies, the pious and the sinners, all with an equal mind. This is a sign of real spiritual advancement. In this material world, we are considering people friends and enemies on the bodily platform. That is on the basis of sense gratification. If one gratifies our senses, he is our friend, and if he does not, he is our enemy. However, once we have realized God or the absolute truth, there is no such material consideration. In this material world, all unconditioned souls are under illusion. A doctor treats all patients, and although a patient may be delirious and insult the doctor does not refuse to treat him. He still administers the medicine that is required. As Lord Jesus Christ said, we should hate the sin, not the sinner. That is a very nice statement, because the sinner is under illusion. He is mad. If we hate him, how can we deliver him? Therefore, those who are advanced devotees, who are really servants of God, do not hate anyone. When Lord Jesus Christ was being crucified, he said, "My God, forgive them. They know not what they do." This is the proper attitude of an advanced devotee. He understands that the conditioned souls cannot be hated because they have become mad due to their materialistic way of thinking. In this Krishna consciousness moment, there is no question of hating anyone. Everyone is welcome to come and chant Hare Krishna. Take Krishna Prasad, listen to the philosophy of the Bhagavad Gita, and try to rectify material conditioned life. This is the essential program of Krishna consciousness. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu said, Yare deke tare kaha Krishna Upadesha, Amara Agnya Guruhanya Tara Edesha. Instruct everyone to follow the orders of Lord Sri Krishna as they are given in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. In this way, become a spiritual master and try to liberate everyone in this land. Yogi Yunyita Satatam Atmanam Rahasi Stitaha Ekaki Yata Chittatma Nirasir Aparigraha. A transcendentalist should always engage his body, mind, and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. In this chapter, in which the Lord is teaching the principles of the yoga system, he here points out that a transcendentalist should always try to concentrate his mind on the Supreme Self. The Supreme Self refers to Krishna, the Supreme Lord. As explained before, Nityo Nityanam Chetananam. God is the Supreme Eternal, the Supreme Living Entity, and the Supreme Self. The purpose of the entire yoga system is to concentrate the mind on the Supreme Self. We are not the Supreme Self. That should be understood. The Supreme Self is God. This is Dvaitavada, duality. Duality means the God is different from me. He is supreme and I am subordinate. He is great and I am small. He is infinite and I am infinite small. This is the relationship between ourselves and God as we should understand it. Because we are not infinitesimal, we should concentrate our mind on the infinite supreme self.
In order to do this, we should live alone, and living alone means that we should not live with those who are not Krishna conscious. Ideally, this means that one should live in a secluded place like a forest or a jungle. But in this age, such a secluded place is very difficult to find. Therefore, secluded place refers to the place where God consciousness is thought. The transcendentalist should also carefully control his mind, and this means fixing the mind on the Supreme Self, or Krishna. As explained before, Krishna is just like the sun, and if the mind is fixed on him, there is no question of darkness. If Krishna is always on our minds, Maya or illusion can never enter. This is the process of concentration. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Pranav. Thank you so much. Krishna. Thank you. हरे कृष्णा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे आज के वक्ता का परिचय देने के लिए मैं हमारे होस्ट हिज ग्रेस गोविंद आनंद प्रभु को बुलाती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा गोविंद आनंद प्रभु। हरे कृष्णा गोविंद आनंद प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्णा गोविंद आनंद प्रभु। आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु। हाँ जी। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा विलम्ब हो गया। नो नो तो वरीज प्रभु। आप सभी नित्यम भागवत सेवा के श्रोतागणों के चरणों पे मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारा नित्यम भागवत सेवा का जो श्रवण होगा वो श्रीमान वनमाली निमाई प्रभु जी के द्वारा होगा। पर प्रभु जी परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज के शिष्य हैं। वो इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से 2008 में जुड़े। उनकी पहली दीक्षा जो थी 2017 में हुई। और प्रभु जी बहुत सारी मुख्य सेवा करते हैं, और प्रभु जी की जो मुख्य सेवा है कि मलयालम में प्रचार करते हैं, कन्नूर केरला इस्कॉन सेंटर में, और हिंदी और अंग्रेजी में भी प्रचार दामोदर देश के भक्तों में कर रहे हैं। और ये एक बहुत प्रभु जी का बहुत अच्छा गुण है कि जो किताब वितरण हर रोज वो किताब वितरण करते हैं श्रीनाथ जी मंदिर के साथ, और बहुत सारे भक्तों को सेवा में लगा के ये किताब का वितरण कर रहे हैं। और माता जी की जो टीम है श्रील प्रभुपाद की मिशन में, उनको भी सेवा में लगाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी और माता जी ने उन्होंने कम से कम 2021 से उन्होंने किताब वितरण शुरू किया है। अब तक कुछ 4200 बुक प्रभु जी ने और उनकी टीम ने वितरित कर दिया वहाँ पे। और अलग अलग प्रभु जी तत्व ज्ञान में प्रभु महाराज के लेक्चर, सीनियर वैष्णव के लेक्चर अच्छे से सुन के सही तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। और प्रभु जी की जो अर्धांगिनी है श्रीमती सुष्मिता गौरंगी माता जी, और उनके पुत्र भक्त सिद्धार्थ और भक्ति मेहदी का, वो उनकी सहायता भी करते हैं।
और प्रभु जी का जो आंदोलन है वो है कि नाम हट्टा उनके शहर में चालू करने के लिए, और गुरु और गौरा की सेवा में सदैव लगे हैं। हरे हरे कृष्णा। धर्म प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे धन्यवाद राम प्रभु जी। कैन यू हियर मी? यस प्रभु। थोड़ा सा आवाज आपका कम आ रहा है प्रभु जी। अभी क्लियर है प्रभु? हाँ, अभी बेटर है प्रभु जी। धन्यवाद राम प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नित्यम भागवत सेवा में दामोदर हरे देश की तरफ से। बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। हरे हरे। प्रभु जी को हम आमंत्रित करेंगे एक बार वांछा कल्पत्र बोल के। वांछा कल्पत्रो वैश्य कृपा सिंधु भैश्च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच। राधा माधव की जय। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सुखदान्तिकं देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्नदांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिने नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगदाधामदाय नगरग्रामदाय नमो पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारणे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को आज का नित्य भागवत सेवा में स्वागत है। आज हम कैंडो 11 चैप्टर 11 स्लोगन नंबर 9 10 17 स्लोगन देखें। तो आई रीड द स्लोगन कंप्लीटली टू विच ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए और भरपूर स्लोगन 11 11 9 सभी भक्तों का अनुग्रह चाहिए, कृपा चाहिए।
सॉरी प्रभु जी, डिस्टर्ब करने के लिए। थोड़ा आवाज और इंक्रीज कर सकते हैं प्रभु जी? ओके ओके प्रभु, अभी कैसा है? थोड़ा बेटर है प्रभु जी। बेटर है, डर के शायद कम हो। तो अब हम होगा पड़ेगा। इंद्रियार्थेषु गुणैरभिगुणेषु च गृह्यमाणेषु अहं कुर्यान् न विद्वानस्त्वविक्रियः। प्रभु, you can read the translation and the purport. Hare Krishna. Anybody can read in the translation and purport. हरे कृष्णा, किसी को वॉलंटियर करना है? हरे अनुवाद? कृष्णा प्रभु जी। यस, ओके माता जी, शुरू। या अनुवाद तात्पर्य बाय शिला प्रभुपाद और उनके शिष्यों द्वारा। भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति अपने आप को शारीरिक कार्यों का कर्ता नहीं मानता, प्रत्युत वह जानता है कि ऐसे कार्यों में प्रकृति के गुणों से उत्पन्न इंद्रियां ही उन्हें गुणों से उत्पन्न इंद्रिय विषयों से संपर्क करती है। तात्पर्य भगवत गीता 3.28 में भगवान कृष्ण ने ऐसे ही वचन कहे हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संचते। हे महाबाहु, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। भौतिक शरीर इंद्रिय विषयों से अन्योन्य क्रिया करता है, क्योंकि शरीर को जीवित रखने के लिए खाना पीना बोलना सोना इत्यादि आवश्यक है। किंतु प्रबुद्ध व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को जानता है, यह कभी नहीं सोचता मैं इन इंद्रिय विषयों को अपनी संपत्ति मानता हूँ और ये मेरे आनंद के लिए है। इसी प्रकार यदि शरीर कोई अद्भुत कर्म करता है तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी गर्वित नहीं होता, नहीं वह शरीर द्वारा किसी प्रकार से कार्य करने में असफल होने पर हताश होता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से पहचान का परित्याग। मनुष्य को चाहिए कि वह इन्हें भगवान की बहिरंग शक्ति के रूप में देखे, जो कि भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि माया के निर्देशन में कार्य करती है। सकाम कर्मों में लीन रहने वाला व्यक्ति महामाया के अथवा बहिरंगा माया के प्रभाव क्षेत्र में कार्य करता है और भौतिक जगत में कष्टों का अनुभव करता है। दूसरी ओर भक्त अंतरंगा शक्ति अर्थात योग माया के प्रभाव में कर्म करता है और भगवान को अपनी प्रेम भक्ति अर्पित करते तुष्ट रहता है। प्रत्येक अवस्था में भगवान अपनी विविध भक्तियों शक्तियों द्वारा कर्म के चरम करता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जो व्यक्ति अपने को देहात्म बुद्धि से ऊपर बताता है, किंतु उसी के साथ ही भौतिक इच्छा तथा मानसिक विकार के वशीभूत रहता है, वह वंचक तथा अदम बुद्धिजीव माना जाता है। हरे कृष्ण। Slogan number 10. दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभावेन कर्मणा वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य बाय शिला प्रभुपाद और उनके शिष्यों द्वारा। अपने पूर्व सकाम कर्मों द्वारा उत्पन्न शरीर के भीतर स्थित अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं ही कर्म का करता हूँ, इसीलिए ऐसा मूर्ख व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मोहग्रस्त होकर उन सकाम कर्मों से बंध जाता है जो वस्तुतः प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तात्पर्य भगवत गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विभुनात्मा कर्ता हंति मन्यते। जीव परम पुरुष भगवान कृष्ण पर आश्रित होता है, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपेक्षा करके अपने को कर्म का कर्ता तथा प्रत्येक वस्तु का भोक्ता मानता है। श्रील
मध्वाचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार राजा उत्पात करने वाली प्रजा को दंड देता है, उसी तरह परमेश्वर पापी जीव को माया के जंजाल में डालकर एक शरीर से दूसरे में देहांतर के लिए बाध्य करके दंड देता है। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 11। एवं विरक्त शयन आसनाडन मंजने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तदा भज्यते विद्वान् तत्र तत्रादयन् गुणान्। अनुवाद तात्पर्य बाय शिला प्रभुपाद और उनके शिष्य द्वारा। प्रबुद्ध व्यक्ति विरक्त रहकर शरीर को लेटने, बैठने, चलने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने, सुनने इत्यादि में लगाता है, लेकिन वह कभी भी ऐसे कार्यों में फंसता नहीं है। निसंदेह वह समस्त शारीरिक कार्यों का साक्षी बनकर अपने इंद्रियों को उनके विषयों में लगाता है और वह मूर्ख व्यक्ति की भांति उसमें फंसता नहीं। तात्पर्य। पिछले अध्याय में उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा था कि प्रबुद्ध व्यक्ति बद्ध जीव की तरह अपने को बाह्य शारीरिक कार्यों में क्यों लगाता है। यहाँ पर उसका उत्तर भगवान द्वारा दिया गया है। मूर्ख व्यक्ति शारीरिक कार्यों में लगा रहकर भौतिक जीवन के कारणों तथा फल में लिप्त रहता है। अतएव उसे उत्कृष्ट शोक तथा हर्ष का सामना करना पड़ता है, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की हार तथा पीड़ा का अध्ययन करता है और शारीरिक कार्यों को भोगने तथा भूलकर भी प्रयास नहीं करता। शारीरिक कार्यों को भोगने का भूलकर भी प्रयास नहीं करता। उल्टे वह विरक्त साक्षी बनकर अपनी इंद्रियों को शरीर पालन के सामान्य कार्यों में लगाता है। जैसा कि आदयन शब्द से सूचित होता है, वह भौतिक अनुभव में वास्तविक स्व अर्थात अपने आप को न लगाकर और कुछ को लगाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। कि उद्धव जी भगवान से ये बद्धात्मा और मुक्तात्मा के बारे में सुनता है। बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ये समझ जाएगा तो हमारा चित्त में ये फिक्स हो जाएगा, तो हमको बहुत क्या बोलता है इधर बुद्धिमान व्यक्ति ये सत्य को, परम सत्य को सब एक इंफॉर्मेशन है। सभी क्रिया भगवान का डायरेक्शन से होता है और हम इसका अंदर एक छोटा सा एक कार्य करता है और ये बहुत डीप गहन का क्या बोलता है इंफॉर्मेशन है। हमारा सनातन धर्म में ये बहुत अच्छी तरह से इसका विवरण करता है और आचार्य गणों में आपको इतना विशाल रूप से प्रभुपाद जैसा आपको एक्सप्लेन करके दिया है। समझाने के लिए नॉर्मली आदमी लोगों को थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो भौतिक स्थिति में फंसा है। इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के हमको इसके बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करना चाहिए। फिर हमको मालूम पड़ेगा ये सारी संसार कैसा चलता है और इसका अंदर हमारा शहर कितना है और भगवान का पार्क कितना है और भौतिक प्रगति का पार्क कितना है। बहुत इम्पोर्टेंट। दुख का एक मूल कारण हमको मालूम पड़ सकता है इधर से, और कैसा आनंद से रहने का वो भी इसका अंदर से मालूम कर सकता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सब वक्त ये सीखने का है। ये भगवद गीता में भी आता है, 13 चैप्टर में डिटेल वर्णन होता है प्रकृति पुत्र और चेतना का बारे
नॉर्मली आदमी लोगों को ये मालूम नहीं पड़ता है। एक बार हम दामोदर आरती में जा रहा था और एक घर में ऐसा आरती करके हम लोग ऐसा ही एक्सप्लेन कर रहा था भगवान का लीला, और बीच में ऐसा आ गया ये भौतिक प्रकृति दुखालय शाश्वतम बोला है। तो उधर का प्रभु जी ने उसको वो पूछा वो कैसे है। हम तो हर दिन काम करता है, ऑफिस जाता है, हमको तनख्वाह मिलता है, हम घर में आके आराम से खाना खाता है, सोता है, बहुत आनंद लेता है, हमको कुछ परेशानी नहीं दिखता है। हाँ, ये ऐसे भी आदमी लोग है, क्योंकि वो सोचता है का लाइफ बहुत आराम से चल रहा है, उसका तनख्वाह मिलता है, ऑफिस में काम करता है तो तनख्वाह मिलके वो घर में आके अ, आराम से सो रहा है, खाना खा रहा है। फिर इसलिए प्रभुपाद उसको बोलता है इग्नोरेंस इज ऑल्सो ब्लिस। अज्ञान में भी हमको बहुत संतोष आता है। ये ये हमारा पागल खाना में जाता है तो पागल वाला आदमी बोलेगा मैं डॉक्टर है, उसको बहुत आनंद होता है काम कर, लेकिन हमको मालूम है उसको सही डॉक्टर को मालूम है इसको कितना परेशान हो। वो खुद सोचता है बहुत आनंद है। वैसा ही इधर भी हमको देखना चाहिए इसका अंदर पूरा सृष्टि का अंदर सार क्या है, द ट्रूथ क्या है, तत्व क्या है, उसका अंदर से प्रभुपाद इधर वर्णन करता है। पूरा तत्व का सार है सृष्टि। वो कृष्ण को कौन पकड़ कर सकता है, उसका आनंद ही आनंद उसको मिलेगा। लेकिन हर आदमी को थोड़ा समझाने के लिए मुश्किल है, इसलिए बार बार ये सुनना पड़ता है। हम लोग भी ऐसे ही है, बात सुनता है, फिर घर में जाके घर का काम कौन करेगा, हम ही करना पड़ेगा, इसलिए वो सुना हुआ चीज पूरा भूल जाएगा। ये ये सभी अ, लेकिन बुद्धिमान इधर लोग बता रहे हैं, इंटेलिजेंट आदमी लोग ये पूरा समझ जाएगा और उसके ऊपर कार्य करेगा, और खाली ज्ञान से नहीं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेगा, फिर उसको आनंद मिल सकता है। लेकिन इधर भी सभी चीज का अंदर कृष्णा को कैसा नजर, अ, कृष्णा का हाथ किधर है हमको भगवत गीता में भी अर्जुन को मालूम नहीं था। भगवान ने बोला तुम मेरा इंस्ट्रक्शन है, तुम फाइट करो, और ये सब आदमी को मैं मार दिया है ऑलरेडी। का अंदर फिर तुमको खाली फूलों का मृत्यु का खाली मैनिफेस्टेशन करने का, बाकी सब हम किया है। का अंदर से ही हमको मालूम पड़ेगा कृष्णा का हाथ कितना है उसका एक क्रिया का। हम लोग भी ऐसे ही काम करता है, और हम लोग सोचेगा पूरा काम मैं ही किया है खुद, और उसका ऊपर कमंड भी है। लेकिन शास्त्र बताता है तीन आदमी लोग काम करता है एक काम, हर काम का अंदर ये तीन लोग आते हैं। जीव इच्छा करता है और भगवान इसको सैंक्शन देता है, फिर प्रकृति भौतिक प्रवृत्ति या नेचर को फैसिलिटेट करता है। ऐसा पूरा कार्य का अंदर ये भगवान का भगवान है पूरा, बस उसका सैंक्शन है उसका सबसे ऊपर। ये सबसे बड़ा डूअर कार्यकर्ता भगवान। लेकिन हम सोचेगा वो कैसा है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मली अंडरस्टैंड करने के लिए हमको क्या है, भगवान का साथ रहते टाइम ये जीव है, भगवान का साथ
पहचानने के बाद भगवान का ही शक्ति है, एक्चुअली सरस्वत शक्ति है, भगवत गीता बताता है जीव को। इसलिए भगवान और जीव ये परम पुरुष है, इसलिए पुरुषोत्तम। प्रभुपाद एक लेक्चर में बताता है, कपिल देव को कपिल देव को संबोधन करता है पुरुषोत्तम। उधर प्रभुपाद एक्सप्लेन करता है ये साक्षात पुरुषोत्तम है भगवान, और जीव क्या है? ये पुरुष को एंजॉय करने के लिए प्रकृति है, एक एंजॉय करने का वस्तु। इसलिए पुरुष भगवान प्रकृति और जीव सबॉर्डिनेट है एक्चुअली। ये मालूम होता है तो जीव भगवान को सेवा करेगा तो भगवान का आनंद उसको भी मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा टाइम उसको भी एंजॉयर और पुरुष बनने का कोशिश करने के लिए ये थोड़ा पलट जाता है भगवान, और प्रभुपाद उसको नाम देता है इल्यूशनरी पुरुष। इल्यूशनरी पुरुष मीन्स डमी पुरुष बनने का कोशिश करता है। कौन? जीव। भगवान से पलट गया, इसलिए अभी वो सोचते हैं हमको थोड़ा भगवान बनने का कोशिश करना है। फिर भगवान इसको हेल्प करता है वो आनंद करने के लिए। कैसा है? भगवान का एक्सटर्नल एनर्जी है, वो भी भगवत गीता में बताता है। प्रकृति, नेचर इज एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। भूमिरापो अनलो वायु कंपनो पृथ्वीरेवच अहंगारम इति भिन्न प्रकृति। तो द प्रकृति इज आल्सो एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। ये पूरा प्रकृति का अंदर से एक कण लेके भगवान को एक शरीर बन के देता है, बना के देता है। तो इसको खुद एंजॉय करने का ताकत नहीं, इसलिए भौतिक प्रवृत्ति या मटेरियल एनर्जी से भगवान खुद इसको एक शरीर देता है कि ये शरीर लेने के बाद अभी ये डम्मी पुरुष क्या सोचता है, इस शरीर से हम भोग कर सकते हैं, और दूसरा शरीर वाला आदमी लोगों को भी ये चूषण करके या एक्सप्लॉइट करके उसको आनंद लेने का कोशिश करती है। नॉर्मल टेंडेंसी। अभी इसका अंदर प्रॉब्लम क्या है? ये डमी पुरुष एक्चुअली एंजॉयर नहीं, ये खुद एक सबॉर्डिनेट है पुरुष का, और भौतिक प्रकृति या मटेरियल एनर्जी भी एक सबॉर्डिनेट है पुरुष का। तो भौतिक प्रकृति भी क्या है? शक्ति है, और या मटेरियल सरस्वत शक्ति या मार्जिनल एनर्जी जीव, वो भी सबॉर्डिनेट है। ये दोनों सबॉर्डिनेट बन के क्या कोशिश कर रहे हैं? ये जीव आनंद करने का कोशिश करते हैं। अभी प्रभुपाद उसको क्या बताता है? ये डमी पुरुष बनने का कोशिश करेगा ना। अब अभी हम एक पुरुष है, पुरुष अभी फीमेल का एक एक्टिंग करने के लिए भी फीमेल का कॉस्ट्यूम लगाए। अभी फीमेल का कॉस्ट्यूम में बैठ के अभी आप लड़की लोगों का काम करने का सोचेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही सिचुएशन में ये जीवा फंसता है, क्योंकि उसने ये इल्यूशनरी या धर्मी पुरुष का वेश लिया। फिर वो प्रकृति से, वो बॉडी के माध्यम से वो एंजॉयर बनने का कोशिश कर रहा है, अगर उसको प्रॉब्लम आता है। ये पूरा उसका सिस्टम, उसका परेशानी इधर आता है। फिर उसको आनंद लेने का चांस बहुत डर, भौतिक प्रवृत्ति में बहुत कम। फिर क्या करना पड़ेगा उसको? कैसे भी आ, भक्ति में आके
पुरुषार्थ में, पंचम पुरुषार्थ भक्ति में आके फिर उसको मालूम पड़ता है मैं एक डमी पुरुष हूँ, मेरा एक्चुअल पोजीशन प्रकृति है या सबॉर्डिनेट है, सेवा करने का भाव है भगवान का, इसलिए वो जीव वापस पलट के फिर भगवान का सेवा में लगा, फिर उसको आना। इतना चीज का अंदर भौतिक प्रकृति और जीव और इंटरनल एनर्जी भी भगवान का ही, हाँ, अंतरंग शक्ति भी भगवत गीता में बताता है महात्मा पार्था देवी प्रकृति मात्र। तो भगवान का एनर्जी, ये तीनों एनर्जी अलग अलग एनर्जीज हैं, मेनली इसको तीन एनर्जी, इंटरनल एक्सटर्नल एंड मार्जिन, ये तीनों प्रकृति है, ये पुरुष बनने का चांसेस नहीं। बस भौतिक प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द पुरुष भगवान, तो दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय पुरुष, like Prabhupada gives the example, like wife is controlled by the husband. Then when wife is controlled by the husband, wife take care of children and the husband. Vaise the Purusha is Bhagavan and Jiva is the marginal energy and the material energy. So the material energy takes instruction from the Lord, भगवान से इंस्ट्रक्शन लेता है और देखभाल किसका भी करता है, ये बच्चा कौन है, जीव, और जीव का और भगवान का भी टेक केयर करता है। अब भगवान का इंस्ट्रक्शन लेते, फिर ये बहुत समझने का कोशिश करना चाहिए हमारा सनातन धर्म में एक कैसा भगवान का सृष्टि में कैसा मैनेजमेंट कितना बहुत अच्छी तरह से किया, क्योंकि अभी मटेरियल एनर्जी, बहुत मटेरियल एनर्जी, ये मटेरियल एनर्जी का ऊपर अभी तो जो हम एक रेस्टोरेंट में गया और एक थाली ली और थाली का अंदर बहुत चीज है खाने की और उसका सामने 4-5 आदमी बैठा है, अभी कैसा उसको शेयर करेगा, वो लोग जल्दबाजी करके कुछ भी मिलता है खाएगा तो उधर आसुरिक टेंडेंसी होता है। वैसे ही इधर भौतिक प्रकृति या मटेरियल एनर्जी को जीव यूटिलाइज करने के लिए जाएगा, उसका असुर पर स्वभाव आता है और उसको ठीक करने के लिए हमारा सिस्टम है वर्णाश्रम रखा है। सुर लोग क्या करते हैं, वर्णाश्रम का हिसाब से वो उसको अप्रोच करेगा, उसको अलग अलग साल जिसमें क्या ले कौन क्या करने का उसका पूरी सिस्टमैटिक रखा है भगवान, उसका हिसाब से वो भौतिक प्रवृत्ति को यूज करेगा तो प्रॉपरली आप क्या हो जाएगा, 4 पुरुषार्थों से वापस आप भगवान तक जा सकते, धर्मार्थ काम मोक्ष। लेकिन भक्त लोग भी जल्दी ये पुरुषार्थ से भी पंचम पुरुषार्थ डायरेक्ट भक्ति में आके वो भगवान को सेवा में लगा सकते हैं। अभी अभी का सिचुएशन क्या है, ये वर्णाश्रम नहीं है और डायरेक्टली अर्थ का ऊपर काम करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका अंदर धर्म भी नहीं है, अर्थ का ऊपर है पूरा। अभी कोई कंट्री दूसरा कंट्री से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है, इमीडिएटली अर्थ का ऊपर उसका लक्ष्य है, फिर उधर कोऑर्डिनेशन का बात ही नहीं आता है, इमीडिएटली फाइट होता है। तो सिस्टम भगवान ने बनाया बहुत अच्छी तरह से, सुर लोग फॉलो करता है तो आराम से वो इधर वापस जा सकते हैं भगवान तक।
डिटेल उसका वर्णन होता है। ये दोनों 3 श्लोक होते हैं और उसका एक एक्सप्लेनेशन डिटेल में 13 चैप्टर भगवत गीता में पूरा पाठ, पूरा अध्याय का एक्सप्लेनेशन ये सब कुछ वर्णन करता है। इसलिए अभी हम पूरा काम करता है ऐसा सोचेगा तो ये जीव क्या सोचता है, मैं इंस्पायर हूँ। इसलिए वो एंजॉइंग टेंडेंसी उसका हाथ में भगवान दिया है, अहंकार, फॉल्स अहंकार डाल के उसको कवर किया है। और उसको क्या क्या भौतिक प्रकृति से मिला, मन बुद्धि अहंकार और पूरा पंचेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय सब मिलके उसको भौतिक प्रकृति से मिला है। ये पूरा एक भक्त और एक आदमी समझेगा इसका अंदर मेरा मेरा एक्टिविटी बहुत कुछ है। हाँ, क्योंकि हम सोच रहे हैं पूरा हमारा ही ऊपर है काम। हम ऐसा सर क्या कुछ भी होता है तो सर में ऐसा हाथ लगाने के लिए भी हमको काल और कर्म का साथ उसका हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि शायद मेरा कर्म में मेरे पास हाथ नहीं है तो फिर ऐसा नहीं कर सकता। तो दूसरा आदमी हमको ऐसा हेल्प करना चाहिए थी, उसका भी अंदर फर्क है। वो खाली सामने आके बैठेगा, शायद वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका अंदर भी काल और कर्म का इफेक्ट आता है। इसलिए हर चीज का अंदर ये काल और कर्म और त्रिगुण, एक 3 गुण का कलर भी ऐड करता है भगवान। ये त्रिगुण क्या करता है, पूरा हमारा इच्छा को कलरफुल बनाता है। अभी सोचो हम पैदा हुआ और मेरा तमोगुण का क्वालिटी है मेरे पास। अभी प्रकृति में ये 3 गुण ऐसा हर टाइम है। हमारा क्वालिटी गुण का हिसाब से हम ये त्रिगुण, प्रकृति का त्रिगुण को टच करेगा, मेरा कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर है वो बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल है तो एक बल्ब, ये बिजली का लाइन जाता है और मेरे पास बल्ब है, मैं जाके वो लाइन में टच करेगा, बल्ब जलता है। वैसे ही ये त्रिगुण पूरा प्रकृति में, और ये जीव का कौन सा गुण से आया है, वो गुण क्या बाहर निकालने का एक प्रकृति से उसका गुण टच हो जाएगा, इमीडिएटली उसका कैरेक्टर नजर आता है। वो क्या चीज खाना पसंद करता है, वो कब उठता है, कब सोता है, क्या चीज उसको पसंद है, ये सब उसका अंदर आता है। इसलिए उसका क्या बोलता है, ये जीव ऐसा अहंकार फॉल्स ईगो में कवर्ड करके मन बुद्धि, एक बार उसको ये मन बुद्धि और पूरा शरीर मिलता है, द फर्स्ट डिजायर, वो पहला डिजायर इसको भोगने का एकदम, ये शरीर का पूरा इंद्रियों का वजह से वो क्या क्या चीज करता है, खाली उसका बॉस का न एक्सपीरियंस वो जीव को आता है, बाकी भोगने का एक्सपीरियंस जीव को नहीं आता है। अभी एक गाड़ी में हम बैठा है बॉस का रूप से, और ड्राइवर है प्रकृति, और पूरा गाड़ी है मेरा बॉडी। और ड्राइवर को एक बार बोल दिया हमको, हम बॉस जैसा बैठा है, फिर गाड़ी स्टार्ट होके जाएगा, भगवान का कंट्रोल में है बहुत सी प्रकृति और मटीरियल नेचर। मेरा चॉइस क्या है, वो चॉइस के हिसाब से वो ड्राइवर ऑप्शन करता है, लेकिन ऑप्शन का रिजल्ट क्या होता है मेरा पास। ये एक चीज इधर से मालूम पड़ता है कि रिजल्ट कुछ भी हमारा पास नहीं। हम कुछ भी कार्य करेगा, कितना भी बड़ा आदमी बोलेगा मैं ही कार्य करता है, लेकिन उसके पास रिजल्ट
चुनने का ऑप्शन ही नहीं है। इसका अंदर से ही मालूम पड़ेगा मेरा हाथ में कुछ, क्योंकि वो रिजल्ट भगवान ने सही करके रखा है। ये खाली जीव का एक क्वालिटी भगवान दिया है, तो एक इच्छा या चॉइस करने का शक्ति है। लेकिन भौतिक प्रकृति या मटीरियल एनर्जी को वो चीज नहीं है, वो खाली डायरेक्टली भगवान का इंस्ट्रक्शन से ही काम करता है। और जीव खाली चॉइस कर सकता है, और चॉइस का हिसाब से क्या करता है, उसको वो एक्सपीरियंस कर सकता है वो। लेकिन ये बॉस बन के वो गाड़ी में बैठा है और प्रकृति उसको लेके जाता है, हर डिफरेंट राइड से लेके जाता है। उसका इंद्रियों से उसको चॉइस मिलता है। ये ये चॉइस हमको ये खाना पसंद है, और आंख से उसका डेटा अंदर गया, मन का अंदर जाके उधर से ऑप्शन शुरू करता है। मन का अंदर से ये अच्छा चीज है, नहीं अच्छी चीज है, ये इतना है। लेकिन बुद्धि उसका ऊपर है, वो रैशनल इंफॉर्मेशन उसको देता है, ये नहीं खाओ, तुम्हारे हेल्थ के लिए नहीं है। फिर भी ये उससे भी ऊपर आवाज से उसको बंद करता है मन। हाँ, मन इसलिए स्ट्रांग आदमी, उसका इंटेलिजेंस में आदमी स्ट्रांग है, तो वो मन का ऊपर थोड़ा कंट्रोल रख सकता है। वरना मन क्या करता है, ओवरराइड करता है इंटेलिजेंस को, फिर उसका मन कैसा भागेगा वैसे ही इसका इंटेलिजेंस भी उसके पीछे ही भागेगा। लेकिन 13 चैप्टर भगवत गीता में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डिसायर करके वो जीव आता है, उसका ऊपर ये अहंकार का ये अहंकार उसको डालता है। फिर उसका इच्छा में एक बार क्या वो जीव ये राइड में जाएगा, उसका सेंसेस का राइड में जाएगा। फिर बाकी राइड, बाकी इच्छा पूरा ये इंद्रिय चुन के ऐसे ही खाली ये बॉस बैठ के बॉस बन के बैठा है, लेकिन वो पूरा काम इंद्रियों ने करता है। खाली ये एक्सपीरियंस करता है मैं बॉस है ये जीव का। लेकिन ये पंचम पुरुषार्थ में ये जीव कैसे भी वो डिवोटी या अ, ऐसा एसोसिएशन में आता है, भक्ति में आता है, तो प्रभुपाद से इमीडिएटली ये अंडरस्टैंड, उसको मालूम पड़ता है मैं पुरुष नहीं है। अभी तक मैं पुरुष का स्त्री पुरुष वेश में डाल के बैठा था। फिर उसको मालूम पड़ता है मैं एक्चुअली दास है भगवान का, और मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इसका सेवा करने का। क्योंकि उधर क्यों फंस जाता है, ये हर टाइम उसको दुखी आता है, क्योंकि वो एक्चुअली पुरुष नहीं, स्त्री, वो पुरुष का वेश में डाला है। और प्रकृति भी पुरुष नहीं है। प्रकृति ये दोनों क्या करता है, एंजॉयर का मूड, एंजॉयर या पुरुष का अ, आनंद करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए वो बोलता है दिस इज इम्पॉसिबल, उसको आनंद नहीं कर सकता है, क्योंकि खाली एक ही आदमी है परम पुरुष। बाकी सब एनर्जी उसका, भगवान का एनर्जी सब प्रकृति है। हाँ, ये प्रकृति का एनर्जी का अ, तत्व इधर भी चलता है। प्रभुपाद गिव्स एग्जांपल ऑफ हस्बैंड एंड हस्बैंड घर में थक के आता है, तो वाइफ क्या करता है, उसको अच्छी तरह से सेवा करता है, और नेक्स्ट डे उसको काम में जाने के लिए एनर्जी मिलता है। एक किधर से ये प्रकृति ये में क्या बोलता है, उसका वाइफ का सर्विस और लविंग एटीट्यूड से उसको एनर्जी का। वैसे ही भगवान भी अलग अलग कार्य ये अलग अलग एनर्जी से करता है, और सब एनर्जी भगवान का प्रकृति है, उसको सबॉर्डिनेट है, एंजॉय करने का चीज है। एंजॉयर खाली भगवान है। इसलिए कुछ भी आदमी या भौतिक प्रकृति या
इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी और मार्जिनल एनर्जी, कोई भी पुरुष का रोल करने के लिए जाएगा, नहीं हो नहीं पाएगा, उसका अंदर खाली दुख ही मिलेगा। ये मटीरियल मटीरियल नेचर में, मटीरियल नेचर का साथ अ, उसका अंदर से ही भगवान हमको शरीर देता है, वरना हमको शरीर मिलके या खुद बनाने के बाद एंजॉय करने का ताकत नहीं, क्योंकि मटीरियल एनर्जी इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम। So Prabhupada is explaining that very nicely on this. So on the last sloga, it is explaining that the intelligent people हमको देखते ही सब लोग क्या स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग सब एक जैसा दिखता है। वो इंद्रिय विषय का अंदर तो मालूम पड़ता है कि इतना इंद्रिय विषय खाली मन बुद्धि तक क्या करता है, उसको खाली ये आत्मा को एंजॉयर का टेस्ट देता है। लेकिन डिवोटी को मालूम है ये खाली एंजॉयर नहीं है, ये एक्चुअली एंजॉयड करने का, भगवान एंजॉयर और हम एंजॉय करने का चीज है भगवान का। इसलिए ये विषयों को बुद्धिमान लोग ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो कार्य करता है पूरा, लेकिन उसका माइंड में मैं दास और भगवान है खाली पुरुष, वो इंफॉर्मेशन, वो वाइटल इंफॉर्मेशन उसका पास है। इसलिए हर साधु लोगों को आप देखेगा उसका मन और बुद्धि और सब इंद्रियों में, इंद्रिय विषय में वो ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसका कॉन्शियस उतना ही नाम जप करके वो प्योर करके रखा है, और कॉन्शियस जितना भी भगवान को ऊपर लगाया है, ये मटेरियल ऑटोमेटिकली ये मटेरियल चीज से और सेंसेस से और अलग होता है, क्योंकि वही सेंसेस वो भक्त इसको यूटिलाइज करता है, भगवान का सेवा में यूटिलाइज करता है, इसलिए दिखने में सेम होता है। हमारा भागवतम में भी एक श्लोक आता है, हर हर दिन सूर्य उड़ता है और अस्तमन होता है, और हर आदमी का आयु कट कट होता है, लेकिन भक्त का आयु या आयु या उसका एक दिन कट नहीं होता है। हम सोचेगा वो कैसा है भाई, इधर हर आदमी का एक एक दिन कट होता है, वो भक्त हो अभक्त हो, भक्त और अभक्त में क्या फर्क है? प्रभुपाद से भक्त और अभक्त में अभक्त ऐसा राक्षस जैसा नहीं, खाली फर्क उसका कॉन्शियस में, चेतना, वो हर टाइम भगवान का चिंतन में है तो वो भक्त, और दूसरा का भौतिक सृष्टि में भौतिक एनर्जी का बारे में सोच के भक्त बैठता है, तो ये दो फर्क है एक्चुअली। लेकिन इधर सूर्य उड़ता है, सूर्य का सनराइज और सनसेट में एक आदमी का आयु कम होता है, लेकिन भक्त का क्यों कम नहीं होता है? तो प्रभुपाद की वन ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। प्रभुपाद से देखो, ये देखता है, देखने में दोनों मरता है, हाँ, आदमी लोग भक्त और अभक्त दोनों मर जाते हैं, लेकिन एक्चुअल बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी है, वो किधर जाता है? भगवान के पास जाता है और एटर्नली उधर रिसाइड करने के लिए जाता है भक्त का, और उसको फिर बाद में जनन मरण का बात नहीं आता है, इसलिए उधर सूर्य क्या नहीं कर सकता है, उसका मृत्यु के लिए उसका दिन कट नहीं कर सकता है। इसलिए भक्त का और अभक्त में एक एक दिन में फर्क है, दिखने में सेम है, लेकिन भक्त का
शाश्वत के लिए जाता है, फिर उसको मृत्यु का नहीं आता है। इसलिए मृत्यु का वो हरण उधर भगवान का भक्त का दिन में नहीं आता। ये प्रभुपाद ऐसा बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन करता है। इसलिए ये 2-3 श्लोक बार बार थोड़ा पाठ करना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अंदर से ही हमको मालूम पड़ता है भगवान पूरा काम भगवान करता है, भगवान का इच्छा से ही सब होता है। हम थोड़ी एक क्या है, एक माइन्यूट डूअर, बाकी सब भगवान का इंस्ट्रक्शन से चलता है। तो वंडरफुल एक्सप्लेनेशन उद्धव जी को मिलता है भगवान से। एनी we will stop here and any questions we can take. हरे साधु साधु साधु। हरे मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया श्लोक के बारे में, कैसे हमको इस भौतिक जीवन से छुटकारा पा सकते हैं और भगवान की प्रेम और भक्ति सेवा में लग सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, या किसी को कुछ टिप्पणी है तो कर सकते हैं अनम्यूट करके। कुछ प्रशंसा है प्रभु जी आपके क्लास के बारे में, बहुत अच्छी क्लास बता रहे हैं। और प्रभु को बोला प्रभु। किसी को कोई प्रश्न, हमारे जिज्ञासा? प्रभु यस हरे प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। दंडकाम हरे धन- कृष्णा प्रभु, प्रणाम प्रणाम। बनवाली प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास आपका, बहुत सीरियस क्लास था, एकदम गहन, मतलब बहुत गूढ़ विषय पे बात की आपने। तो ये कटक सब्जेक्ट में। आपने बोला अज्ञान की वजह से मनुष्य जो है सुखी हो जाता है। तो वैसे तो अज्ञान होने से मनुष्य को दुखी होना चाहिए, परंतु शिला प्रभुपाद ने भी कोड किया है कि अज्ञान की वजह से सुख होता है। हाँ, तो बहुत हाँ, तो मतलब जैसे आपने बताया, तो इस संसार तो पूरा दुखालय है, इसके फिर ऊपर से अज्ञान भी है, फिर हम सुखी कैसे रहेंगे इसमें? हाँ, सुखी रहने के लिए आप भक्त का बात सोच रहे तो नॉर्मली ज्ञान इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञान चाहिए। अभी एक सिंपल एग्जांपल आप देख लेगा, आप एक पानी पी रहा है, लेकिन वो पानी में अ, गंदा पानी है अच्छा पानी है, आपको फर्क मालूम नहीं पड़ता है, तो इमीडिएटली आपको बीमारी आएगा, आपको सफरिंग होता है। अच्छा पानी पिएगा, इमीडिएटली आपको अ, क्या बोला, आपका हेल्थ अच्छा है, आप हैप्पीली बैठ सकता है। लेकिन ज्ञान से आप नॉर्मली हैप्पीनेस ऐसा आता है। इधर का ज्ञान एक्चुअली स्पिरिचुअल नॉलेज का फर्क क्या है, हमारा रिपीटेड चक्कर का अंदर घुसने का इंफॉर्मेशन हमको सही तरह से आएगा, फिर हम मालूम पड़ता है ये डेंजरस, हम माया झाल में फंस रहे हैं। हाँ, इसलिए मटेरियल एनर्जी माया एक्चुअली इट्स एन इल्यूशनरी थिंग, उधर नहीं है वो चीज, फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर ही। इसलिए अभी आप संसार में आ गया और भगवान आपके ऊपर अहंकार का एक ब्रश डाल, मैं पुरुष हूँ। फिर वो जीव गाड़ी में बैठा है, प्रकृति का वजह से उसको गाड़ी शरीर मिला है, और वो गाड़ी में प्रकृति ड्राइवर है, इंस्ट्रक्शन भगवान से ले रहे हैं, चॉइस एक बार ये जीव ने किया, फिर वो गाड़ी किधर जाता है, भगवान ने डायरेक्शन दिया उधर जाता है।
अगर एक एग्जाम्पल, अभी आप एक दुकान में गया और दुकान वाला बोलता है सिगरेट है, पी जाओ। मैं उधर जाके सिगरेट लेगा और चॉइस वो जीव का है, मेरा ये लेगा या नहीं लेगा, पिएगा या नहीं पिएगा, मेरा चॉइस। लेकिन रिजल्ट मेरा हाथ में नहीं। रिजल्ट उसको कैंसर आएगा ऑलरेडी फिक्स करके रखा है भगवान। नहीं पिएगा नहीं कैंसर आएगा। फिर ये रिजल्ट ऑलरेडी चॉइस में है। अभी ज्ञान है तो आप ऑटोमेटिकली वो नहीं लेगा, आप सेफ है, हैप्पी है। वरना आपको इमीडिएटली सफरिंग है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञान मिलेगा, फिर वो माया जाल में फंसने का चांसेस कम होते हैं। लेकिन वैसा ही होगा, आपको समझ में आए। थैंक यू, धन्यवाद। अरे धन्यवाद। अरे किसी का कोई और प्रश्न, जिज्ञासा या टिप्पणी? प्रभु जी, आपकी अनुमति हो तो प्रश्न नहीं है किसी का, तो हम आगे की घोषणाओं की ओर बढ़ते हैं और उसके पश्चात प्रार्थना ले लेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा इस ग्रह से अनंत प्रभु जी को आज की घोषणाओं को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा से अनंत प्रभु जी। आई थिंक से अनंत प्रभु जी नहीं है, तो मैं परमानंद प्रभु जी से विनंती करूंगा। आई थिंक हरे परमानेंट है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा वनमाली प्रभु दंडवत प्रणाम। अरे थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल योर क्लास वाज सो नाइस। एकदम शांति पूर्वक, एकदम सतो गुण में आप एकदम क्लास देते हैं, सो नाइस टू हियर। एंड लाइक वी डोंट वांट टू मिस, एक शब्द भी मिस करने को इच्छा नहीं करती। इतना शांति से, इतने अच्छे से, इतने जैसे रसा सिंधु कृष्ण बलराम प्रभु ने बोला कि इतनी गुह्यतम बातें आप बताते हैं इतने शांति। सो नाइस, थैंक यू प्रभु जी। और ग्लोरी। और जैसे हमें पता चला कि आप इतने सारे बुक वितरण कर रहे हैं, इट्स रियली डेडिकेटेड सेवा भी। हमारी तरफ से आपको पूरा प्रणाम है, आपकी टीम को पूरा प्रणाम कि आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। सो इंस्पायरिंग एक्चुअली। जब भी हम मंदिर जाते हैं आपको देखते हैं, आप बुक्स लेकर के प्रचार कर रहे हैं। इट्स रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल क्लास प्रभु जी, वंस अगेन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गोविंद प्रभु जी। एज वी नो के कल हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। हमारे साथ नारू गोपाल प्रभु जी थे सिंधी सेरेमनी हॉल में। बहुत अच्छा कीर्तन और बहुत अच्छी कथा प्रभु जी ने बताई कि वैष्णव का स्वभाव कैसे होना चाहिए। एंड टुमारो संडे, एकादशी है कल 7 तारीख। तो हमारे शिवल प्रभु ने जी ने कहा है कि हम सबको जल्दी आना है 8 बजे गिरिजन इंटरनेशनल स्कूल में। हम 16 माला बैठ करके एक साथ जप करेंगे। सो कृपा करके कल आइए, हमारे साथ इस नारू गोपाल प्रभु जी होंगे और कीर्तन प्रसादम एवरीथिंग विल बी देयर। सो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे पूनम कृष्णा, प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhu, Paramahansa Krishna Prabhu. यस You announced 16 rounds chanting at 8 o'clock. Is it? Did I hear it correctly?
Because Yes, Prabhu. last time at 8 o'clock we did 32 rounds. Yes. So we'll wait for the message today, Prabhuji. Aaj Yeah, we will because check. 16 means it will be finishing by 9:45. Ah, correct. I just had a doubt because last time also, by the time on 31st, by the time the session got over and by the time Prabhu briefed, it was almost 8 o'clock we started. Just kindly check up and let us know. Yes, Prabhu. Yes. Thank you, Jagan Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. So हरे कृष्ण। prayer. Yes, Prabhu. हम प्रार्थना ले लेंगे आज। एक रौनक मनवानी जो 17 वर्ष के भक्त है, उनका कल देहांत हो गया एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में। तो उनके पेरेंट्स को शक्ति प्राप्त हो, उनके लिए प्रार्थना लेंगे। ऋचा गोयनका माता जी के लिए प्रार्थना लेंगे। और रेखा माता जी बोल रही है उनके पुत्र के लिए प्रार्थना लेने के लिए। स्वर्ण गोपिका माता जी के लिए भी प्रार्थना लेनी है। और प्रतिमा कुलकर्णी माता जी बोल रही है प्रांजलि के लिए प्रार्थना लेना है। और जो कोई भी पीड़ित है, जिनका और कोई कष्ट है जीवन में, सबके लिए हम प्रार्थना लेंगे ताकि सब भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्ति सेवा में लग जाए। हम लोग सर्व सुखी न भवंतु, सबके लिए प्रार्थना लेंगे। हरे सब में। कृष्णा। हाँ प्रभु जी। सॉरी गोविंद प्रभु जी, आज हमारे पूर्ण पूर्णानंद प्रभु और श्याम सुंदर माता जी का वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हमारे अन्नदाता जो है गिदवानी प्रभु, उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है। और हमारे जय गोविंद प्रभु जी की मदर की श्राद्ध सेरेमनी है, तो उनके लिए भी प्रेयर्स है। ठीक है, और किसी को कोई प्रार्थना लेनी है तो अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग प्रार्थना लेते हैं, आचार्य की शरण लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यम भागवत सेवा की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, आप सभी भक्तगणों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस मनमाली प्रभु जी की जय। प्रभु जी आपकी अनुमति हो तो हम आज के इस क्लास को विराम देंगे, कल फिर पुनः वेट करेंगे नए वक्ता के लिए। आप सबका दिन में कृष्णमय हो, मंगलमय हो, यही हमारा प्रार्थना है सबसे। हरे कृष्णा। तो मैं होस्ट से कहूंगा इस कक्षा को विराम दीजिए।